A very good morning to everyone. We now begin with the celebration of the 72nd Republic Day. I now request everyone to please stand in attention for the national anthem. I now request Master Vignesh Gaukar to please read the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of the nation. In a Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves Good morning, respected manager, Father Francis Swami, our principal, Reverend Father Jude Fernandez, our supervisor, Miss Annette Henricks, teachers, masters, and my fellow friends. Today, we are celebrating the 72nd Republic Day. But I must say that this year of 2020 and 2021 has really been a crucial role for all of us, as we all had to face the COVID 19 pandemic situation, due to which we are unable to commemorate this historic moment physically. But I thank my teacher for giving me this opportunity to speak about this special day. Republic Day has been celebrated every year in India on the 26th of January since 1950 to honor the date on which the Constitution of India came into effect. On this auspicious occasion, we bow our heads before the memories of Indian freedom fighters and great leaders. This is an occasion to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity, and equality among all our citizens. Last but not the least, I am proud to be the citizen of India, which ensures the fundamental right of every citizen, such as the right to equality, freedom, religion, culture, education, privacy. Thank you. I now request Master Zen Parker to explain the importance of this day, which is to change. Good morning, everyone. In the first slide, we see Mahatma Gandhi, who gave his life fighting for the independence and the Great Partition.
and brought change to the country. In this slide, we see a lawyer who is an environmental activist from Mumbai. He arranged the world's largest beach cleanup drive at Warsaw Beach. He inspired many people to act for the environment. In the fourth slide, we see Greta Thunberg, who through her weekly ranting became world famous as an environmental activist. She got to give a speech in the UN which swayed the minds of many young generations. In that speech, she warned the current generations about pollution and emission. In this slide, we see an unfamiliar face of Malala Yousafzai. Malala is a Pakistani activist for female education, and during her line of work, she was shot in the head by a Talibani. She thankfully recovered and earned the Nobel Peace Prize award, which is one of the highest honor one can get, at the age of 17, making her the youngest Nobel Award winner. As you can see, all of these people have brought change in their surroundings in a positive manner, and we should be more like these people. We can also bring change, though it may be small, but they may add up and become something big. We should all from this day accept to become a model student, citizen, and even children. As the world progresses, so should we. We may not directly be able to helpful in these acts, but indirectly, we as an individual can change this world, given enough hope and will. Thank you. A very happy Republic Day to all. I now request Master Khushji to take over. Today, we, in a very special day, thank teacher Noreen Koti for her 25 years of dedicated service to St. Mary's. I would now like to dedicate a short poem for teacher Noreen Koti. जो धैर्यता का पाठ पढ़ाए वही सच्चा गुरु कहलाए, संकट में जो हंसना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए, पग पग पर परछाई सा साथ निभाए वही सच्चा गुरु कहलाए, जिसे देख आदर से सर झुक जाए वही सच्चा गुरु कहलाए. Thank you, teacher Noreen, for always supporting us and helping us. Here is a small greeting card presented by the Chindarkar family. The most dedicated, passionate, inspiring, and motivating teacher. The completion of 25 years doesn't mean that your journey of compassionate teaching stops here, but rather shows your successful journey through all these years in this institution. You're not only a teacher by profession, but a person with a golden heart who is ready to serve and help many. A social worker who helps unconditionally. We all admire you for all what you do. You are like the gardener who sows the seed of imagination. Today, we'll reap into the leaders and innovators of tomorrow. So here's wishing you a great 25 years of dedicated service. May you have a healthy and a blessed life. Thank you. I would now like to invite Master Buranuddin Pardawala to say a few words about the sub. A school is not only about the teachers or students, but also about the people who are always there to help us. I would like to thank all our helping hands, especially Mr. Santosh Gawane, for all his selfless support and assistance for all these years. A very big thank you. Here's a small video presented by Master Tawhid Siddiqui explaining why is Republic Day celebrated. Why is Republic Day celebrated? Counted among the 3 national holidays of the country together with the Independence Day, 15th August,
and Gandhi Jayanti, 2nd October, Republic Day of India, 26th January, is a very popular national celebration. This event marks the proud founding of the Republic tradition of one of the largest democracies in the world. The significance of the day. Republic Day is meant to honor the date in which the country's Constituent Assembly adopted the Constitution specially framed for the nation. On 26th January 1950, the newly drafted Constitution of India came to be enforced by way of replacing the Government of India Act 1935. Since then, this day is celebrated as the Republic Day of India year on year as a national event with a public holiday declared in all states of the country. Purna Swaraj. On 26 January 1930, the Indian National Congress declared Purna Swaraj or complete independence of the country from foreign rule. This proclamation enjoined the members of the Congress as well as the band of Indian nationalists to fight for the independence of the country, and it was also decided that this day shall be celebrated as the Independence Day of the country. Later, when India got its independence on another day, 15th August, it was decided that the Constituent Assembly would enforce the Constitution on 26th January 1950, though it was adopted on 26th November 1949. The need for a constitution. India got its freedom from the British rule on 15th August 1947. The freedom of the country was brought about by the bloodless and peaceful resistance envisioned by the Congress under the leadership of Mahatma Gandhi, who championed the way of non-violent protest of a kind and scale that was unprecedented in the history. When India was declared as the constitutional monarchy on this day, the nation still did not have a permanent constitution. Therefore, on 28 August 1947, the drafting committee was established under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. Constitution is enforced. The drafting committee submitted a draft of the Constitution to the Assembly on 4th November 1947. Assembly organized a series of sessions to discuss the Constitution. The process that stretched over 166 days was spread over 2 years, 11 months and 18 days. All these sessions were open to the public. Copies of the Constitution. Following several deliberations and modifications, the Assembly, consisting of 308 members, prepared 2 handwritten copies of the Constitution, one in Hindi and the other in English, duly signed by all the members. After its signing on 24th January 1950, it was enforced throughout the nation 2 days later on 26th January 1950. Celebrations in the country. The main Republic Day event is organized year on this date in the capital of India, New Delhi. In a ceremony held in Rajpath, the President of India presides over the event and a colorful and ceremonious parade is organized in honor of the nation. If you enjoyed watching our video, do share it and don't forget. We now have a patriotic song presented by beloved parents of Standard 10. Hey,
beloved parents. It definitely gave a positive vibe. Good morning, Miss Annette. We wish you a very happy Republic Day and thank you for your presence. Good morning. Good morning, teachers. Good morning, parents. Good morning, students. And good morning to our guest of honor, Teacher Julie. Thank you so much for being here. Thank you, I think, for a very nice program. I can see the parents' talent, the students will be more than that. Okay, and our strong support, our teachers who help in organizing this program. Thank you, one and all. And a happy Republic Day to each one of you. I would now like to Thank invite you. Master. Sorry, Miss. Thank you, Teacher Annette, and a happy Republic Day to you. Thank you, Miss Yes, Annette. thank you. I would now like to invite Master Larif Siddiqui to deliver the word of thanks. A very good morning to our principal, Reverend Father Jude Fernandez, supervisor, Mrs. Annette Henry, teachers, parents, and classmates. On behalf of Class 10, I thank our principal and teachers for providing us an opportunity to connect online and celebrate this very important National Day. Today's presentation and videos were well present. I also thank the road tractors for their presence. Last but not the least, thank you, Teacher Julie, for all support provided during the entire year in making Marathi a most loved subject. Thank you. Teacher Julie, I would like you to say a few words. I don't know. Good morning, boys. I don't know, Larif forgot or no, but Sheila teacher, we must thank her because she is always with me. कुछ भी करे तो उसके लिए वो मेरे साथ में जरूर खड़ी रहती है और ये पूरा प्रोग्राम जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है विथ हेल्प ऑफ आई थिंक टोनी सर. Am I right? Yes, Miss. Yes. Okay. Thank you. Yes, It yes. was a wonderful program. She told me Tony. Yeah, Tony and Sajida is also there. So I said leave you out this time. You are to relax. I don't have speech. मुझे स्पीच नहीं देना है. मैं तो हर रोज स्पीच देती रहती हूँ आपको क्लास में. But I just wanted to talk to you, boys. Are you ready? Yes, Miss. हाँ, so मुझे भी बहुत कम जानकारी है गणतंत्र दिवस के बारे में. I mean रिपब्लिक डे. ओके, तो गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे कि ये बनाया किसने है, लिखा किसने है. सबको पता है? Yes, Miss. डॉक्टर बाबा. बोलो. हाँ, बाबा कॉन्स्टिट्यूशन. और कितने साल पहले ये बना है? 1950. कितने साल हो गए? 72 years. 71 completed, no? तो 71. अगर कोई भी बुढ़ा आदमी या तो 50 years का या तो कोई भी आपको कुछ सजेशन दे तो हम उनको क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, आज का जनरेशन तो अलग है ना, तुम्हारी बातें कौन सुनता है? Am I right or wrong? जनरेशन गैप, ये बहुत बड़ा यानी वर्ड यूज करते हैं हम ना, बराबर है ना? जनरेशन गैप. तो इसमें कितनी सारी जनरेशन, 70 years पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वही हम अभी तक चला रहे. सही बात है ना? Yes, Miss. Yes, Miss. हाँ, तो इसका मतलब पहले के लोग जो बोलते हैं, पहले जिसने सोचा था उन्होंने कितनी आगे की सोची थी. हम बोलते हैं कि इंग्रज लोग बहुत बड़े बड़े प्लान्स ये बनाया वो बनाया और उन्होंने बहुत 150 साल पूरा आगे की सोच रखी. और लेकिन हमारे इंडियंस भी कुछ कम नहीं है. बाबा साहेब आम्बेडकर ने तब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो आगे की सोच के अभी तक हम लोग उसका पालन करते. और ये बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको जलाने की बात कही थी. मालूम है तुमको ये बात? नहीं मालूम.
क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो यूएस, रशिया यानी यूएसएसआर, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, ये बैग ऑफ बोरोइंग है ओरिजिनल। ये लिखा गया है, जैसे कि हमने अभी देखा कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, इंग्लिश और हिंदी। हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कौन थे? कौन थे? कौन सी लँग्वेज उनके मराठी। हाँ, परंतु त्याने मराठीत नाही लिहिलं, त्यांनी कोणत्या भाषेमध्ये लिहिलं? इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये. कारण हे सगळ्यांना कळलं पाहिजे, म्हणजे समजलं पाहिजे, त्याच्यासाठी त्यांनी लिहिलं. आणि ह्याच्यावर असं नाहीये की कोणतीही नवीन गोष्ट जेव्हा तयार होते, कौन सी भी अगर नई अगर चीज तैयार होती है, हम लोग उसको रूल्स बोलो या तो कोई भी चीज, तो उसको अपोजिशन ऐसा ही नहीं कि हाँ 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 चल तेरा बहुत अच्छा है, ये सजेशन तेरा है तो चलो उसको आगे करो, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारे अपोजिशन लोग खड़े हुए, इस पर डिबेट्स हुए गए, इस पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई, और फिर तभी उन्होंने ये जलाने की बात सोची थी। आप जाओ विकिपीडिया पे या तो गूगल पे, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि टुडेज यूथ आरंट फॉन्ड ऑफ बुक्स, ये एक मिथ है। मिथ मीन्स क्या है? मिथ यानी क्या? MITH, मिथ. त्याला वर्ड काय आहे? हिंदीत वर्ड काय आहे? मिथ. गलतफहमी. गलतफहमी. हाँ, गलतफहमी नहीं बोल सकते। मिथ यानी कल्पित कथा है, कल्पित, कल्पना किया हुआ है, की फक्त विचार केलेला आहे। हे खरं आहे की खोटं आहे माहिती नाही, परंतु असं बोललं जातं की टुडेज यूथ आरंट फॉन्ड ऑफ बुक्स, की आजची जी यूथ आहेत, आजची जी युवा पिढी आहे, त्यांना पुस्तक वाचणं आवडत नाहीये. बरोबर आहे का चुकीचं आहे? बरोबर आहे. ओके, आपल्याला दोन मिळाले. आता आपण यांच्यामध्ये डिबेट करूया. आता बोल की तुला का वाटते की बरोबर आहे आणि तुला का वाटते की चुकीचं आहे, उदाहरणासहित स्पष्ट करा. चला, हा प्रश्न आहे. Miss, reading practical books is not very common, but there are apps like Kindle and all, and tabs are there. So parents buy that tablet and give it to their children. So that is online reading of books, but not practically. That's what but that's what I'm saying. Like practical reading is not happening. Practical reading is not happening, but the online reading, what I can say, it is happening. But practical reading is more important. Yeah, practical reading. You tell about yourself. Means you say your opinion about this. चिंदरकर, तुला क्या वाटते? एक 9th स्टैंडर्ड में हमने कविता पढ़ी थी, किताब, पता है? हाँ, तो बोलो, इस आधार पर बोलो कि क्यों जरूरी है पुस्तक पढ़ना. मिस प्रैक्टिकल बोल अतर्व बोल. तो प्रैक्टिकल बुक में हम लोग को कुछ मार्क करना होगा, या हम लोग का कुछ इमोशंस वगैरह हम वो प्रैक्टिकल बुक में लिख सकते हैं. पर हम लोग जो किंडल वगैरह ये जो बुक्स है वो सिर्फ ऑनलाइन है और वो एक माध्यम है, पर बुक्स जो किताब होती है वो किताब की जगह कोई ले नहीं सकता है. तो वो हम लोग को इम्पोर्टेंट किताब होती है. तुम्हाला माहित है, जेव्हा वर्ष शुरू होते, जब साल शुरू होता है और मस्त नए नए किताबें आते हैं, तो उसकी सुगंध ही इतनी अच्छी रहती है, और उसको कैसे मस्त ना नई नवेली दुल्हन की तरह हम लोग सजाते हैं और रखते हैं, उसकी केयर करते हैं. तो ये है. अभी बहुत सारी चीजें आपको PDF से भेजा जाता है, वो आपको कंफर्टेबल है या आप उसका प्रिंट आउट करके सामने रखे वो कंफर्टेबल है? प्रिंट आउट में प्रिंट आउट क्यों, क्या फर्क है? आप अभी तो बोले कि किंडल है, ये है, वो है, उस पर हम देख सकते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई यू वांट दैट? मिस, इट इज आल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग साइंटिफिकली, वो आंखों के लिए अच्छा रहता है प्रिंट आउट वगैरह, और ये फोन की लाइट अच्छी नहीं रहती, उसमें से रेडिएशन वगैरह निकलते जो आंखों के लिए अच्छे नहीं है, और वो एक चीज है. और ऑनलाइन में आप जैसे ज्यादा करके अपने पेरेंट्स को शायद नहीं मालूम रहता है, बहुत कम पेरेंट्स को मालूम रहता है कि ऑनलाइन में क्या कर रहा है बच्चा,
और अगर प्रिंट आउट में तो उनके आंखों के सामने है कि हाँ ये कर रहा है, ये है, तो पेरेंट्स भी वही प्रिफर करेंगे प्रिंट आउट। एनीवन एल्स वांट टू ऐड? दूसरे भी है, 66 मेंबर्स है यहाँ पे, कम ऑन बॉयज। ओके, तो मेरे ख्याल से कि अभी जाकर तुम लोग लाइब्रेरी में बहुत बैठेंगे, लेकिन अभी तो समय नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी में आप कॉलेज में जाएंगे तो जरूर लाइब्रेरी को भेंट देंगे और कंप्यूटर से थोड़ा सा दूर होंगे। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी ने पढ़ा है क्या अभी तक? बहुत बड़ी बुक बहुत है। उसमें कितने हैं पता है? ओरिजिनल टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे है, और उसमें 22 पार्ट्स अफेक्टेड 26 जन 1950। फिर अभी इसके 448 है आर्टिकल्स और 100 अमेंडमेंट। So 444 articles, or clearly articles 15, articles 13, articles 21, articles 20, articles ये सब हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जरूर पढ़ो तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात कि स्कूल, अभी हम स्कूल की तरफ जाएंगे कि स्कूल अगर सक्सेसफुल चलाना है एकदम मस्त, तो उसमें क्या जरूरी है? स्कूल सक्सेसफुल चलाना है तो उसमें क्या जरूरी है? रूल्स डिसिप्लिन, ये जरूरी है। हाँ, बहुत सारे रूल्स डिसिप्लिन आपके टीचर्स बोलते हैं, प्रिंसिपल चिल्लाते हैं, सुपरवाइजर्स पीछे पड़ती है, आपके घर में भी बहुत सारे रूल्स है, मम्मा भी बोलती है, लेकिन हम उनका पालन करते हैं क्या? हम पालन करते नहीं करते तो पूरा खराब ही हो जाती है, फिर ये धमाल होता है ना, हमको पनिशमेंट भी मिलती है। तो उसी प्रकार ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए हैं ये क्या है? दरअसल कंट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये डेमोक्रेटिक जब बनाया था, ये कंट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और जब तक हम जैसे स्कूल को अच्छी तरह से चलाने के लिए जब तक हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करते तब तक नहीं चलेगा। वैसे ही जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है उसका अमल नहीं करते हैं तब तक देश अपना सीधा नहीं चलेगा। एकदम छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में बातें दी गई है, बड़े बड़े रूल्स दिए, लेकिन हमको क्या बोलना है? अभी किसी ने बोला कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि हमारे फंडामेंटल्स नीड्स क्या है? फंडामेंटल नीड्स कौन से हैं? अरे रोटी, कपड़ा, मकान, कपड़ा, मकान और अभी ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स भी है। किसी चीज को तो पता भी नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे कितने हैं और हम उसको कहाँ पे यूज करते हैं। एकदम सिंपल से रूल्स है और फिर सामने वाला उसका फायदा उठाता है। तो कौन से फंडामेंटल रूल्स अभी अथर्व ने या तो किसी ने बोला कि कौन से? इक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन, एम आई राइट? टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, हाँ, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, देन फ्रैटर्निटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ओके, कोई भी ये जो बनाते हैं, जो राइट्स बनाते हैं, तो राइट्स, प्रिविलेज, इसमें बहुत फर्क। बोलो अभी मुझे कौन बोलेगा कि राइट क्या है और प्रिविलेज क्या है? हमारे राइट्स क्या है? हाँ बोलो। मतलब जो बेसिक नेसेसिटी होती है, जो अपना हक है वो होता है, और प्रिविलेजेस जो अपन खुद से ले सकते हैं, अपना एक लेवल जो भी स्टेटस हो जाता है उसके बाद आप अपने प्रिविलेजेस ले सकते हैं, और राइट्स जो है वो सबको मिलना चाहिए। ओके, अभी पकड़ लो कि कौन सा इक्वालिटी ये राइट है आपका। ओके, जो फंडामेंटल राइट है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। बिकॉज क्या है, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो ये फंडामेंटल राइट है।
तो इसका तुम अच्छी तरह से फायदा उठाएंगे या फिर उसका प्रिविलेज कैसे उठाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उसका प्रिविलेज भी उठाते हैं ना, जिसके आगे हाँ कभी कभी कुछ कुछ होता है, बातें बोलता है ऐसा इंसिडेंस या वाकया या एग्जाम्पल कि जहाँ पे ये राइट था लेकिन इसका प्रिविलेज लिया गया है। इक्वालिटी को लेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे राशन का गाड़ी आता है कभी कभी, कुछ लोग उसका राइट होता है मतलब सबको इक्वली मिलना चाहिए वगैरह, पर कुछ लोग फायदा उठा के एक्स्ट्रा घर के अंदर भाव में दूसरों का जो राइट होती है वो बिगाड़ देते हैं वो लोग। Exactly. So as you are an activism member of DA, activism member है हम, तो तुम क्या करेंगे वहाँ पे जाके? इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्रंट करना चाहिए जो भी लोग है जैसे राशन वाले जो भी है वहाँ पे, और उनको समझाना चाहिए एक्टिवली, ना कि सिर्फ बोलने के जरिए। समझो अगर कुछ ऐसा हुआ हमारे यहाँ तो हम जाके इसे बोल सकते हैं अगर हमारा वो राइट है तो। क्योंकि अभी पेंडेमिक में हमारे इधर भी, मैं कभी राशन ली नहीं हूँ वहां पर, लेकिन लोग बोलते हैं मेरे काम वाले में कि बहुत सारा राशन आया लेकिन वही टाइम पे नहीं दिया गया। वो लोग संभाल के रखते हैं और फिर डबल भाव में वो बाद में निकालते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये हुआ एक राशन का। और इक्वालिटी में और क्या आता है? जैसे कि लड़का लड़की के बारे में इक्वालिटी है, दिया है हक, तो कैसे तुम इसका प्रिविलेज कैसा उठाते हैं? ये हमारा हक है फिर कैसे? हाँ हमारी एजुकेशन ओनली इक्वालिटी है, एजुकेशन इक्वालिटी आहे। मतलब एंड आई नो क्या लड़कियों तुम को लोगों पूरा को, नहीं। हाँ बोल चंदर का। मिस लड़कियों को बोलते हैं कि तुम इधर तक ही पढ़ो, उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम घर के काम संभालो। है बहुत सारे फैमिलीज अभी भी है ऐसे करने वाले, अभी भी है कि कॉलेज में नहीं भेजेंगे, कि वो किसी के साथ में लफड़ा करेगी। These are the words parents are using. No, जल्दी से शादी करो और भेजो। लगता है कि आपको, आपकी बहन अगर घर में है तो आपको लगता है क्या कि ऐसा कोई बोझ है हमारे सर पे, या तो कुछ टेंशन वाली बात है? हाँ या तो है, लड़कियां ज्यादा काम करते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ। या तो आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी डैडी प्यार करती है और लड़कियों को नहीं करती है? उल्टा मेरे ख्याल से लड़की करती है, कंप्लेंट्स भी रहती है। ओके तो ये है। और दूसरे राइट्स है कि छोटी छोटी बातें, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कौन सी राष्ट्रीय संपत्ति है हमारी? नेशनल वेल्थ क्या है? जो लोग छोड़ के गए, हमारी पुरानी बहुत सालों पहले की। हाँ हम लोग जाते हैं दिल्ली, लाल किला देखने जाते हैं। हाँ चलो कुछ उठाया, या तो चौक लिया या तो पेंट लिया और वहां पे अपना नाम लिख के आए उसके ऊपर। जरूरी है क्या? नहीं। दिल्ली वालों का है ना, वो हमारा थोड़ी है। ऐसा है क्या? नहीं, सबका है नहीं, सबका हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इंडियन। बहुत उसकी देखभाल करना है। वैसे ही आजू बाजू आपके पार्क है, या तो छोटी छोटी बातें हैं वो, जैसे कि लाइन में खड़े रहो। चलो मेरा वो अंदर वाला पहचान वाला है, हाँ टिकट काउंटर पे, चलो मैं जाता हूँ पीछे से। नहीं, लाइन में खड़े रहो। हाँ हर पब्लिक पे लाइन, नहीं तो किधर भी थूकना। अरे ये मेरी लोकेलिटी थोड़ी है, यहाँ पे कौन सब थूकते, चलो मैं भी थूक जाऊं ना। तो इस प्रकार से बहुत से है और रूल्स है। ये छोटे छोटे रूल है, आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रही हूँ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, और पढ़ो मैं बोल रही हूँ, तो आपको आपके हक जरूर मिलेंगे। थिंग अबाउट व्हाट जूली मिस जस्ट सेड, थूकना मना है। हम लोग क्या देखते हैं ना कि जहाँ बोर्ड लगा होता है यहाँ पेशाब करना मना है, वहाँ ही सबसे ज्यादा लोग पेशाब करने जाते हैं। एग्जैक्टली वहीं पे खड़े रह जाते हैं।
ओके तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैं अभी कंक्लूड करती हूँ क्योंकि बहुत है, क्योंकि आपको पता है मैं बोलने जाऊंगी तो बहुत सारा। लेकिन मैंने एक ये थॉमस पेन फ्रॉम हिज बुक राइट ऑफ मैन, इसमें से कुछ वर्ड्स मुझे ये आपने सुने भी रहेंगे कि when it can be said by any country in the world, my poor are happy, neither ignorance nor distress is to be found among them. My jails are empty of prisoners, my street of beggars. The aged are not in want. The taxes are not oppressive. The rational world is my friend because I am the friend of happiness. When these things can be said, then may that country boost its constitution and government. So I'm just asking you question, means ये एक आपके लिए एक सोच है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि मैंने कहा कि पहले कम थे लेकिन अभी बढ़ रहे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, आर्टिकल्स बढ़ रहे, तो आप भी तो एक ऐसे कोई व्यक्ति बन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की तरह कि ऐसे बड़े इंसान बनेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना आर्टिकल रखने वाले हैं। तो सोचो कि कौन से बहुत सारे सब चीजें जो आपको दी जाती है वो अच्छी रहती है या तो बुरी रहती है, ऐसा नहीं है। इस पर बहुत सोच विचार करके ये आर्टिकल्स बनाया गया है। सो आपको क्या लगता है कि कौन सी यानी ये है जो नहीं होना चाहिए और कौन सी होनी चाहिए? किसी के पास है कुछ आइडिया कि हमने सोचा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा होना चाहिए? Anyone? Hello? Yes, we can hear you. Could you repeat please? कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, राइट, जो बनाए हैं वो है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि जिस बनाए हैं इसके लिए हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा इसमें कुछ तो भी डाउट आता है या तो ये ऐसा है और मैं इस पे और चेंजेस लाना चाहता हूँ। मैं, हाँ, आप ऐसा कुछ जो है? प्रिविलेजेस दिए गए हैं लाइक माइनॉरिटीज को, उस पे थोड़ा चेंज, क्योंकि लाइक उनको जिसका टैलेंट है उसे ये मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ वो माइनॉरिटी से है। क्योंकि अभी सबके थोड़े लोग नहीं, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा, थोड़े लोग उसका गलत फायदा जरूर उठा रहे हैं। हाँ, गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वहां पे सच्ची में वो लोग दलित थे, सच्ची में उनकी हालत वैसे, खुद बाबा साहेब अम्बेडकर वैसे थे, उनकी हालत नहीं थी तभी उन्होंने बनाए गए। लेकिन आज हमारा एक ये है कि इंसान का कि हम लोग उसका फायदा एंड तक उठाते। अभी वही दलित इतने अमीर हो गए हैं कि मध्यम जो लोग हैं यानी जो ओपन कैटेगरीज के लोग हैं वो उल्टे गरीब है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। जैसे कि एजुकेशन के बारे में कि अथर्व चिंदरकर को अगर 95% है तो अगर वहाँ पे माइनॉरिटी की बात है तो उससे कम परसेंटेज वाले, और अगर वो माइनॉरिटी में फॉल पड़ता है तो उसको दिया जाता है। एम आई राइट? बराबर ना? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ना? रिजर्वेशन कोटा। तो तुम क्या कर सकते हैं? तुम एज ए एक्टिजन, यू आर एक्टिजन मेंबर और सब एक्टिजन मेंबर है ये सब, तो तुम भी कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐसा कुछ इसके लिए बहुत पढ़ाई करो, हाँ, उस जगह पर पहुंचो और शायद तुम इसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे यस माय स्टूडेंट, हमारा ये स्टूडेंट है सेंट मैरीज का स्टूडेंट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा बदल लाया है। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक्स। Thank you, Ms. Noreen. It was really inspiring and motivating. It enlightened our knowledge. Thank you, and may God bless you with good health. We end today's program with a song which awakened millions of people and got them to lay their lives for their motherland. A national song, Vande Mataram.
Thank you once again, everyone, for being here, especially Ms. Noreen Kutty. I also thank Father Jude Fernandez and Supervisor Ms. Annette Hendricks to give us the opportunity to conduct this program online. I also thank Ms. Sheila, Tony Sir, and teacher Sajida for guiding the students throughout the program. A special mention of Master Ibrahim Lokhandwala for his technical help. Once again, a very happy Republic. It was a wonderful program, boys, 10th standard, 10th A and B. God bless you all and happy Republic. Can start leaving, right? Okay, we can leave. सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है Thank you, boys. Thank you, boys. And we wish you a very happy Republic Day once again. Lovely program. Thank you. Thank you. Thank you, teachers.
Wonderful program, boys. Very proud of you. Very well done. I'm very proud of you. God bless you. God bless you. Happy Republic Day, everyone. Happy Republic Day, sir. तेरी मिट्टी में मिल कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू And
हाँ हाँ, एक मिनट